Good evening, everyone. Today I'm going to teach you some Excel commands. Here I have taken a blank workbook. I have closed that grid lines, and now what I'm doing, I'm enlarging my cell 1, and now I will insert one shape of a rectangular. Now you can see that how I'm enlarging this shape, and now I'm putting one text here, task 1, which we will learn in this whole video. First task, that is of basic functions. Now you can see how I'm enlarging, how I'm bolding, how I am writing my tasks, and how you can write like in this room. You have seen in every book we are having chapters. This is like a chapter. In sheet 1 I have written simple commands of function or simple command or functions of Excel, just to show a database entry or basic function, to show that how you can do beautifully in this manner. Now I have taken sheet 2. Here I am pasting the file, and here I have taken marks of the student in each subject, uh, and these marks are of reward exam. Now see how I have selected this file. फाइल का हमने सिलेक्शन रखा है ये. Now what we are doing here is inserting a table. Why we are inserting a table? Inserting a table is very good or easy to do functions or apply functions. Okay, ये टेबल से बहुत easy हो जाता है functions apply करने में. Now I have taken one column, and here I am writing the name of the column as total. Now we are doing the total of the students. You can see here I'm using formula sum. First function, you can see sum function, English के marks, Hindi के marks, maths के marks, science के marks, SST IT के marks. Okay. Now see, in one function I have applied in one cell, and it has been applied to every cell. Now I have taken one more row, and here I have written margin center. You can do, and you can write the pre-board marks. हमने इसे एक heading भी दे दिए. Now what we are doing, we are inserting one more column. Here we are writing the percentage. For percentage, you know what formula we use, equal to now total into 100 upon whatever your subtotal is. Now हम स्टूडेंट की काउंट करेंगे कि हमारे कितने स्टूडेंट ने अप्लाई किया. फॉर दैट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग the cells in which we have written the marks of the students by roll number wise, और count का apply करेंगे function by using that count function. Second function, you can see we got to know that how many students appeared in exam. 55 students appeared in exam. Now what we are doing, subtotal of each subject. इसके लिए भी हम यहाँ पे एक फंक्शन यूज करने वाले sum. दैट सेम फंक्शन हमें पता चल गया इंग्लिश में जितने भी स्टूडेंट 55 स्टूडेंट ने इतने मार्क्स को भी एक सेल से हम दूसरे सेल तक लेके आते हैं तो सेम फंक्शन अप्लाई हो जाता है, वो कॉपी पेस्ट हो जाता है ड्रैग एंड ड्रॉप करने से. एंड यू कैन सी दैट सेम थिंग हैपेंस इन द ईच एंड एवरी सेल. Here what we are doing now is average of, we are taking average of the students, and for average we have taken the cell from where we want to take average. अगर हम ड्रैग करेंगे नीचे से तो सेम आपका जितना भी फंक्शन है that will apply to other cells too. Right. Now what we are doing, अब हम यहाँ पे काउंट करने वाले हैं कि कितने जितने हमारे स्टूडेंट्स के ओवरऑल परसेंटेज रेंज हम करने वाले हैं कि हमारे 33 से 44 तक कितने बच्चों ने स्कोर किया. उसके लिए काउंट इफ्स का यूज करेंगे. व्हेन वी आर हैविंग टू रेंज, तो अगर हमारे पास टू रेंज है तो उस टू रेंज के लिए हम काउंट इफ्स का करेंगे, जहाँ पे रेंज में और क्राइटेरिया भी हम शो करेंगे. रेंज हमने शो कर दिया है, ये रेंज है, हम परसेंटेज की रेंज शो कर दिए. उसके बाद हमने क्राइटेरिया बता दिया है. हमारा क्राइटेरिया है ग्रेटर देन 33 एंड लेस देन आपका 44. सेम फंक्शन वी विल अप्लाई टू अदर सेल्स टू, बट हियर वी विल चेंज वन थिंग. क्राइटेरिया हमारा चेंज हो जाएगा 45 to 60, and same will be applied to 60 to 85 and above 85 students. Same you can do here. See the things which we are doing same. And sometime
अप्लाइंग दिस फंक्शन, कॉपी पेस्ट करेंगे, डबल इक्वल टू यूज कर दिया, हमें एक हटाना पड़ेगा। आपको भी पता है कि अगर जब हम फंक्शन में ऐड कर रहे हैं तो हमें डबल इक्वल टू की जरूरत नहीं है। अब हमने इसको कॉपी पेस्ट बहुत इजीली हमारा काम को भी इजी कर देता है। आपको अगर आपसे कोई गलती भी हो जाती है तो हियर इन एक्सेल देयर इज हेल्प ऑप्शन आल्सो, वेयर यू कैन गेट टू नो दैट what error you have done. See what I have written, and same thing 60 to 85. This we are doing with the other cells too. 60 or 85 हम लिखेंगे। जैसे 85 लिखेंगे, we got to know how many students have got 60 to 85 percentage marks. Same thing we have done here. We don't have to use count ifs. सी हमें काउंट इफ यूज नहीं करना था, यहाँ हमारी गलती हुई क्योंकि हमें एक ही रेंज ऑफ क्राइटेरिया गलती हुई हमसे, दैट वी एक्सेल हमें हेल्प के लिए ऑप्शन भी यूज करता है और डबल इक्वल टू यूज कर रहे हैं, दैट वी हैव आल्सो हैव टू डू करेक्शन। यहाँ हेल्प ऑप्शन में आप देख सकते हैं किस तरीके से काउंट इफ फंक्शन का रूल है। यहाँ हम इफ्स यूज नहीं करेंगे, इफ यूज करेंगे बिकॉज यहाँ पे हमारा रेंज सिर्फ एक ही है और क्राइटेरिया भी हमारा एक ही है, अब 85 ही है। सेम थिंग वी विल डू। और यहाँ से हम जैसे एंटर प्रेस करेंगे, ये हमें बता रहा है कि हमने डबल इक्वल टू किया है, हमें एक इक्वल टू करने, और हम ऑटो करेक्ट भी कर देता है एक्सेल। एडवांस एक्सेल में हमारी ये चीजें ऑटो करेक्ट भी हो जाती हैं, तो इट्स वेरी इजी टू लर्न एक्सेल। नाउ आई हैव बोल्ड all the things: total appear student, pass, fail, percentage, and overall percentage marks. Now what we are doing, in the next function we are using conditional formatting. We want to know that how many students have got marks more than 70, because 70 in board examination हमारा out of 80 marks होता है, 70 plus students, we want to know that who can score above 70 and who can get the full marks in subject, in any subject. Or same we have used for less than 32 marks, मतलब we want to know that who student will be failing in examination, तो हमने उसे कर दिया है। There are so many options in conditional formatting according to your usability, you can use any one. तो फॉर दिस वी हैव यूज फॉर हमारे लिए स्कोरिंग बच्चे कितने हैं और फेल होने वाले बच्चे कौन है, यही दो बच्चे हैं आई थिंक इन एवरी स्कूल विच वी कंसिडरेट। अब नाउ नेक्स्ट हम शीट ओपन करते हैं, टास्क 2 करेंगे। सेम थिंग वी विल डू, हम अपने सेल को बढ़ाएंगे, पहले सेल को इनलार्ज करेंगे और यहाँ पे हम टास्क 2 करेंगे, विच आई टोल्ड यू वी विल राइट what chart. We can change the color of that text box too. चार्ट अब हम यूज करने वाले हैं, शेप्स में हम यूज कर सकते हैं। इंसर्ट में आपका शेप आ जाता है, शेप में आप ये कर सकते हैं। टास्क 2 वी विल राइट, से हम यहाँ पे लिख रहे थे आउटसाइड दैट इमेज, तो ये हमें एरर शो कर रहा है। इस तरीके की इमेज एरर भी आ सकती हैं आपको। आप इमेज को क्लिक करिए और इसी इमेज में इमेज या आपके आइकन में क्लिक कीजिए और उसमें लिखिए। इसके बाद हम सेलेक्ट करें ऑल करके इसमें लिखेंगे क्रिएटिंग चार्ट्स इन एक्सेल को, उसको हम एनलार्ज कर देंगे और एनलार्ज करने के बाद हम उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। वट एवर वे यू वॉन्ट टू राइट यू कैन राइट। ये एक बुकमार्क की तरह भी काम आता है आपके एक्सेल में, और एक तरीके से आपको पता भी चल जाता है कि अगर हम इस तरीके की चीजें करके हमें अभी हमें नेक्स्ट स्लाइड में हमें ये चीजें मिलने वाली है, नेक्स्ट स्लाइड में हमें क्या क्या मिलने वाला है, तो ये चीजें हमारे लिए बहुत ईजी गोइंग हो जाती है। सी आई हैव डन इन माई वे, यू कैन डू इट योर वे टू मेक इट ब्यूटीफुल एंड प्रेजेंटेबल। ये स्कूल लाइफ में बहुत यूज होता है कि आपको किस तरीके से आपने बुकमार्क्स ऐड किए, आप जो असाइनमेंट्स बनाते हैं तो आपने यूज किए होंगे कि आप आगे के फ्रंट पेज में। नाउ सी आई हैव टेकन 3 चार्ट्स, यू कैन यूज इंसर्ट, और इंसर्ट में आपके डेटा वैल्यूज में आप यूज कर सकते हैं वर्कबुक वाला। इसे हमने टास्क 2 नीचे हमने एडिट भी कर सकते हैं, टास्क 2 भी लिख सकते हैं और इसके बाद हमने चार्ट्स भी लिख सकते हैं और हमने सब्जेक्ट वाइज परफॉर्मेंस बता दिए। इंग्लिश में इतनी स्कोर की है, आपके बाकी सब्जेक्ट्स में इतने स्कोर किए। इनके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, फिल से आप देखिए, ऑटो फिल, वाटर, कोई भी जैसा भी आपको चाहिए आप इसके फिल कीजिए, सॉलिड फिल कीजिए, ग्रेनाइट फिल कीजिए, जिस तरीके से आपको शो करना है आप शो कर सकते हैं। सेकेंड चार्ट हमने लिया है स्कैटर चार्ट। अभी स्कैटर चार्ट में हमने क्या शो किए हैं, हमने
परफॉर्मेंस शो की है साइंस और मैथ्स की। बेसिकली स्कूल में आपने देखा होगा साइंस और मैथ्स का ही देखा जाता है कि बच्चे साइंस और मैथ्स में क्या करेंगे। अब अगर आपको ये लेजेंड्स वगैरह नहीं चाहिए तो आप इन्हें हटा सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते आपके चार्ट में ग्रिड लाइंस रहे तो ग्रिड लाइंस को भी हटा दीजिए। ग्रिड लाइंस वैसे अच्छा नहीं लगता है देखने में। एक्सेस हटाना तो एक्सेस भी हटा सकते हैं, पर एक्सेस ना हटाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। हमें पता कैसे चलेगा कि किस बच्चे ने कितने स्कोर किए। अब हम देखिए इस चार्ट एरिया में मार्क्स लिख रहे हैं। मार्क्स, वी आर राइटिंग द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन साइंस और मैथ्स। साइंस और मैथ्स में हमने कितनी परफॉर्मेंस की है बच्चों ने, ये हमें पता चलने वाला है। अब देखिए इसे हम एनलार्ज कर सकते हैं कि जैसा मर्जी आपको करनी है। आपका पेज है, आप जिस तरीके से शो करना चाहें। Your all workbook is your all, and you can want to show it in a 3D format, you can show it in 3D format, whatever format you want to show you can do. मेरे को लगा इन तीनों को हम अलग अलग कर देते हैं तो अलग अलग हमें अच्छा ही लगेगा। दैट्स व्हाट आई हैव डन। जितना अच्छा हमें ओनली आपको दिख सकेगा। फॉर ए बिगिनर पर्सन you can see in that way. See a chart I have taken. See this scatter chart I have done this. Now मुझे एक एक बच्चे का मार्क्स पता चल रहा है कि इसके मैथ्स में कितने हैं फ्रॉम दैट ऑरेंज कलर वगैरह। किसके मैथ्स में है कितने हैं, किसके कैसे कलर्स आप देख सकते हैं कि कितने वाइब्रेंट कलर्स हैं यहाँ पे। जैसे जैसा कलर पसंद हो, पिंक पसंद हो पिंक यूज कीजिए, जैसा भी पसंद हो आपको। नाउ व्हाट वी कैन डू हियर इज वी आर नॉट नोइंग दैट कि हमें मार्क्स किसके। मैथ्स और साइंस का तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि यार ब्लू मार्क्स तो मैथ्स के साइंस के इसमें इस तरीके से वैल्यूज से हमें भी पता चल रहा है, बट यहाँ साइड में लिखा नहीं है। तो व्हाट वी विल डू हियर वी विल यूज लेजेंड्स, और लेजेंड्स को हाईलाइट करें। आप देखिए हमें कितने अच्छे से पता चल रहा है मैथ्स और साइंस में व्हाट मार्क्स वी हैव स्कोर्ड इन मैथ्स एंड व्हाट मार्क्स वी हैव स्कोर्ड इन साइंस। तो इट शुड बी प्रेजेंटेबल। जितना प्रेजेंटेबल रहेगा, जितने हमें वैल्यूज देखने को मिलेंगे, दैट इट विल बी क्लियर टू अस। अगर हम ऐसे ही छोड़ देते विदाउट लेजेंड्स दैट मैथ्स और साइंस के स्कोरिंग मार्क्स कितने हैं तो हमें पता ही नहीं चलता। नाउ वी वर पुटिंग these two charts below so that each one is visible to you all. And now what I'm doing that aligning these thing। अब ब्यूटीफुल बनाने के लिए तो जैसे आपकी मर्जी है जैसे बनाओ। आपको ब्लैक एंड व्हाइट शो करना है ब्लैक एंड व्हाइट शो करो, कलर्ड शो करना है कलर्ड शो करो, बट if you use color then it looks beautiful also and presentable too। आजकल चीजें कलरफुल है एंड ब्लैक एंड व्हाइट तो some people don't like black and white too, so you can use colors in your black and white life too। Now it's a total marks of subjects। Now in this data what I have written, this is a column chart, 3D column chart से, और इसमें मैंने total marks subjects के वाइज लिखे हुए हैं। जैसे we have done the subtotal of the each and every subject। Okay, see how in 3D it's looking very beautiful। उनके ब्लॉक्स देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं। नाउ बट वी सी इन सीरीज के नेम भी चेंज कर सकते हैं, जस्ट लाइक आई हैव चेंज द मार्क्स। लेजेंड्स में हमने मार्क्स सीरीज लिखा, हमने साइंस मैथ्स इनकी चेंज कर दिए, तो नीचे सीरीज 4 5 6 तक लिखे हुए आए। इनके हमने सजेस्ट आईटी करके हमने इनके मार्क्स इनके नेम्स चेंज कर दिए। यू कैन चेंज एडिट कर सकते हैं आप सिलेक्ट डेटा से, और ग्रिड लाइंस भी ऑफ कर सकते हैं। सी हाउ ब्यूटिफुली आई हैव डन। You can do it your way also। ग्रिड लाइंस चाहते तो ग्रिड लाइन रखिए, मुझे तो ग्रिड लाइन बिल्कुल नहीं पसंद आती। इट्स डजंट लुक ब्यूटीफुल। हमारा लाइंस पे ही कंसंट्रेशन रह जाता है कि कहाँ लाइन क्या जा रही है। We don't look into the numbers too। See how I have done with these numbers too। नंबर्स हमें पता होने चाहिए। साइड में एक्सेस हमारे को जरूरत पड़ती है। एक्सेस की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है कि हमें पता नहीं चल रहा कि कौन कितनी वैल्यू पे जा रहा है। Over and all I have these numbers। you can see in subjects के numbers हम देख सकते हैं कि हाईलाइट कर दिए with yellow color, क्योंकि पहले दिख नहीं रहा था हमारे इस 3D मॉडल में कि मार्क्स कितने हैं। अब सी here I have done this thing। और नीचे below after that below you can see subject by performance में आप एडिटिंग करके, और this is how I have created charts in Excel। and how we can do conditional formatting, we can use functions in Excel।
And these two tasks we had done in Excel, and you can do your also